Morning students. Today we will cover the topic a closer look Hampi, Surat and Masulipattnam. Okay, Hampi, Surat and Masulipattnam. Hampi, Surat and Masulipattnam. Where is Hampi? Hampi कहाँ पे है? It is in which state? Karnataka. Krishna. Okay, Hampi is in Karnataka. Okay, and Surat, Gujarat and Masulipattnam in Andhra Pradesh. Okay, so we will just study one after the other about these towns. Now have a look. Okay, the architectural splendor of Hampi. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. You can underline this part. When was the Vijayanagar Empire founded? The Vijayanagar Empire was founded in the year 1336. The magnificent ruins of Hampi reveal a well-fortified city. Okay, so what we come to know as far as Hampi is concerned, is that okay, Hampi is a well-fortified city. Hampi is a, or we can say was, क्योंकि ये अतीत से संबंधित है. It was a well-fortified city. Okay. Now see, no mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to raise them through, okay, together by interlocking. Okay, the walls were built. The walls were built by, okay, using the interlocking method. ठीक है ना? अब इंटरलॉकिंग मेथड क्या होता है? इंटरलॉकिंग में जो है ईंटों को इस प्रकार से जो है लगाया जाता है ताकि वो लोग आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे. ओके, आई विल शो यू हाउ. नाउ सपोजिंग दिस इज अ ब्रिक. ओके, ये पहला लेयर है. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ठीक है ना, ये ऐसे करके जो है नॉर्मल में हम लोग लगाते हैं. नॉर्मल में अगर आप राजमिस्त्री को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा सीमेंट डालेंगे और उसके बाद दूसरा ब्रिक जो है ज्वाइन करेंगे. ठीक है ना. इंटरलॉकिंग मेथड में क्या होता है? ओके, ऐसे ऐसे करके जो है ईंटों को लॉक कर दिया जाता है. ठीक है ना. एक दूसरे को जो है थोड़े थोड़े इंटरवल्स में जो है इसको ऐसे करके लॉक कर दिया जाता है. ओके. Ananya Singh, kindly mute yourself. Anmol Kumar Singh, Zaid, Zaid Tahir, mute करो नीचे के. Okay, so what we see. Now see children, okay, so no mortar and no cement was used for construction of the walls. Now see children, a fortified city. This is how a Portuguese traveler Domingo Pais described Hampi in the 16th century. So who is Domingo Pais? Domingo Pais जो है एक पुर्तगाली नाभिक है. ठीक है ना, या पथिक हम कहेंगे. डोमिंगो पेस, अ पोर्टुगीज ट्रैवलर, पुर्तगाली. Okay, he was a Portuguese traveler. And according to him, see, okay, at the entrance of the gate where those pass who come from Goa, okay, this king has made within it a very strong city with walls and towers. These walls are not like those of other cities but are made of very strong masonry such as would be found.
is happening? ये कुछ बच्चे ना सारे बच्चों को परेशान करके रख देते हैं। हाँ, सी लग रहा है जैसे मछली बेच रहे हैं। सो हिस्ट्री ओके, डोमिंगो पेस इज अ पोर्टुगीज ट्रैवलर। पेज नंबर 83 पे है हम लोग, देखो। और उनके हिसाब से जो हम्पी जो शहर था, ओके, वो हम्पी शहर के चारों तरफ जो है मजबूत दीवारें बनी हुई थी। और ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि ठीक है। और हम देख रहे हैं कि मजबूत दीवारें किस प्रकार से बनी हुई थी। ना तो इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया था, ना इसमें मोटर का प्रयोग किया गया था। इनको इंटरलॉक करके जो है तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बावजूद ये जो है बहुत ही मजबूत थी। सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स। ओके, so Domingo Pace, a Portuguese traveler, remarked, Hampi, okay, to be a beautiful पाया है। Hampi to be a beautiful city. Okay, so we see that वहां पे जो बिल्डिंगें बनी थी वो एक कतार में खूबसूरती से बनाई गई थी। और साथ ही साथ उनके जो छत थे वो फ्लैट थे, ओके, विथ फ्लैट रूफ्स। ठीक है ना। द आर्किटेक्ट, व्हाई डू यू थिंक द सिटी वाज फोर्टिफाइड? नाउ टेल मी द आंसर। सहस यादव, लग रहा है पहली बार जुड़े हो। टेल मी, व्हाई वाज द सिटी फोर्टिफाइड? अनुज कुमार राय, बोलो। शहर के चारों तरफ जो है मजबूत दीवारें क्यों बनाई गई थी? मैम क्योंकि मैम सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस मैम। मैम दूसरे राजा अटैक करते थे तो सेफ रहने के लिए। सेफ्टी पर्पस से, ठीक है ना। ओके, सो वी सी यस दैट, मैम। ओके, द सिटी वाज फोर्टिफाइड। वी कैन राइट द आंसर हियर, पेंसिल से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, द सिटी वाज फोर्टिफाइड टू प्रोटेक्ट इट। ओके, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है ना, फ्रॉम द अटैक्स ऑफ, ओके, जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके आक्रमण से बचाने के लिए। ओके, अटैक्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है ना, जो पड़ोसी जो राज्य है उनसे बचाने के लिए जो है, उनके आक्रमण से बचाने के लिए जो है सिटी को जो है फोर्टिफाइड कर दिया गया था। ओके, the architecture of Hampi was quite distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arcades, okay, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. Okay, अब देखो, इतना हो गया, मैं मिटा दूं इसको? Should I wipe it out? Now see children. Yes, ma'am. Now see what are arches. आप रूलर्स एंड बिल्डिंग्स जो चैप्टर्स पढ़े हैं लेसन 5, उसमें आपको पता है कि आर्क किसे कहा जाता है। Zaid Tahir, what is your problem? You want to be removed from the group or what? No, ma'am. No, nobody will add you. You are creating disturbance. Once I remove you from the group, now nobody is going to add you. Sorry, ma'am. Better you mute yourself. Yes, sir. Okay. Now see what are arcs. ओके, आपने जब पढ़ा था तो उसमें आपने इस प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ओके, ठीक है ना। These are called the arcs and then dome. ओके, जमा मस्जिद का जो ऊपर का गुंबज जो था, ओके, जो सर्कुलर जो शेप है उसको हम डोम कहते हैं। नाउ व्हाट इज निशेस? निशेस का मतलब क्या होता है? अभी भी आप जाएंगे, ठीक है ना, जो पुराने आपके जो घर होते हैं, ओके, अगर गांव के जो घर होंगे ना तो उसमें आप क्या देखेंगे, घरों में जो है बीच बीच में ऐसे करके बने हुए रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप या तो कोई जो है, ठीक है ना, लैंप रख देते हो या फिर कुछ ना कुछ रख देते हो आप। ओके, आपकी प्रादेशिक भाषा में आप उसको दिए रखा बोलते हैं। ठीक है ना, आप उसको दिए रखा बोलते हैं। बट दीज आर द निशेस।
तो जो Yes, ma'am. हम्पी का जो आर्किटेक्चर था उसमें जो है इस प्रकार के जो है निशेस बने हुए थे एंड दिस निशेस वेर यूज्ड फॉर कीपिंग व्हाट, यहाँ पे जो है आइडल को रखने के लिए, जो भगवान की मूर्तियां होती थी ना, ओके, उनको रखने के लिए, उनको सजाने के लिए निशेस बने हुए थे। और जो पूरा जो आर्किटेक्चर था उसमें ये सारे डिजाइन्स मौजूद थे। डोम वाज देयर, द आर्क वाज देयर, okay, all these was there in the architecture of Hampi, which was making it quite distinct. Okay, they also had well planned orchards and pleasure gardens. तो इनमें जो है बागीचे भी जो है बहुत सलीके से बागीचे बने हुए थे। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि सी pleasure gardens. Pleasure gardens are meant for entertainment and sculpture motifs such as the lotus and corbel. Okay. आटो मैम चौक कुर्सी पर बैठो। आदित्य से नाउ सी, ओके, आप देखेंगे कि ये इस प्रकार का जो है कुछ स्ट्रक्चर जैसा रहता है, ठीक है ना, इस टाइप का जो है आप देखेंगे बना रहता है। जो पुरानी जो इमारतें होती है ना, ओके, उनके जो है छत के नीचे जो है इस प्रकार का जो है आर्किटेक्चर जैसा बना रहता है। खूबसूरती से जो है सीमेंट के ये बने हुए रहते हैं, कहीं कहीं पे लकड़ी के बने हुए रहते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मान लो ये जो यहाँ पे जो है आपकी बालकनी एरिया है, ठीक है, तो उसको मजबूती देने के लिए जो है एट कॉर्नर्स दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स आर मेड, ओके, एंड इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉर्बेल कहेंगे। ओके, दीज आर द कॉर्बेल्स and lotuses were made. All these are part of the architecture of Hampi. In its heyday in the 15th 16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. वाणिज्य वाणिज्य के क्षेत्र में जो है, वाणिज्य के क्षेत्र में जो है हम्पी का एक बहुत ही बड़ा अस्तित्व था। ओके, और यहाँ पे बहुत सारा जो है व्यापार हुआ करता था। नाउ सी, and see, in its heyday in 15th and 16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Moors, okay, Chetis and agents of European traders such as Portuguese thronged the Hampi markets of Hampi. Now see, okay, who are these? Moors, okay, Chetis. And then you have agents of see, European traders. Who are these agents of European traders? जो यूरोपियन जो व्यापारी हैं, ठीक है ना, यूरोप के जो व्यापारी हैं उनके एजेंट कौन है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली जो है, ओके, यूरोप से डिमांड लेके आते थे और हमारे देश से जो है वो सामान सब खरीद के लेके जाते थे। ओके, ये मुस्लिम मर्चेंट्स के लिए प्रयोग किया गया है। जो मुस्लिम मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको जो है ओके मूर्स कहा जाता था। So Moors, Chettis and agents of European traders, okay, acquired as far as okay trade was concerned. As far as trade was concerned, okay, व्यापार के क्षेत्र में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। जैद ताहिर, फिर से तुम अपने आप को अनम्यूट किए हो। पीयूष, Mr. Anmol Kumar Singh, Aditya and Jed, you want to be removed from the group or what? ना तो आप लोग पढ़ते हो ना बाकी बच्चों को पढ़ने देते हो। हाँ, एक के चलते सारे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। And Jay, why you have scored only 85% बेटा? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे?
जय, आर यू देयर? Yes, ma'am. जय आदित्य वर्मा, your score is 85%. Why? You failed to understand the questions? Now you will not respond. वहां से सर देखते रहिए, ठीक है ना? ये बोल चुके हैं. Now see, temples were the hub of cultural activities, and Devadasis, temple dancers, performed, okay, before the deity, royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha, okay, Virupaksha mandir, okay. विरूपक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है. अब इस मंदिर में जो है ये देवदासियों की जो है प्रथा हमारे देश में हुआ करती थी, और ऐसा माना जाता था कि ये जो देवदासी हैं, ठीक है ना, ओके, इनका विवाह जो है जिस इष्ट की मंदिर हुआ करती थी, मान लो भगवान विष्णु की मंदिर है, तो वो अपने पति के रूप में जो है भगवान विष्णु को मानती थी, और आजीवन जो है वो उनकी पत्नी के रूप में जो है सस्ती सवरती थी, और उनको रिझाने के लिए नृत्य करती थी और गाने गाती थी, ठीक है ना. तो देवदासी की प्रथा जो है ये हमारे देश में थी उस वक्त मिडिएवल पीरियड में. एंड दिस टेम्पल डांसर्स, द देवदासीज, दे यूज्ड टू परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ महानवमी. एंड see, they used to perform in the Virupaksha temple, which is a form of Shiva temple. The Mahanami festival, known today as Navaratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Okay. Celebrated at Hampi. Archaeologists have found the Mahanami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565. So what we see that the empire was founded in 1336 and it, okay, fell to ruin in 1565. Okay. And page number. Page number 84 beta. तो 1565 में जो है, ओके, हम्पी का जो है हम्पी का जो है पतन होने लगता है. क्यों? ड्यू टू द डेक्कनी सुल्तान्स, ओके, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार. ओके, ठीक है ना. विच इनले वर्क ऑफ बिदार इज फेमस? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्क, इनले वर्क ऑफ बिदार? जय. All of you can hear me? Yes, beta. Yes, ma'am. What is the Yes, ma'am. Yes, ma'am. what is the Yes, English ma'am. work of Bidar called? Ma'am, what? The Ma'am, English question. work of Bidar is known as what? Ma'am, handcraft. ना बेटा, बिदरी कहा जाता था. क्योंकि बिदार से बिलोंग करता था तो उसे बिदरी कहा जाता था. आपके बुक में कैंडल स्टैंड का इमेज भी दिया गया है. थोड़ा ध्यान दो आप लोग. ओके, सो what we see that, okay, the Hampi, one of the important cities of Karnataka, ओके, कर्नाटक राज्य के ये शहर है. ओके, इसके स्थापना जो है हम देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर के साथ इसका जो है अस्तित्व की शुरुआत होती है. और 1565 में जब दिक्कनी सुल्तान विजयनगर एम्पायर के जो शासक हैं उनको हराते हैं, उसके बाद इसका पतन हो जाता है. दूसरे जो शहर है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सूरत. ओके, नाउ
एक समय में जो सूरत है, ओके, सूरत को जो है हमारे देश का सबसे गंदा शहर माना जाता था। आप बता सकते हैं क्यों? देयर वाज अ टाइम व्हेन सूरत, आप क्लास 6 में पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 6 में सिविक्स की बुक में आप पढ़ के आ रहे हो अबाउट सूरत। व्हाट हैपेंड इन सूरत व्हिच मेड इट वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री? समथिंग हैपेंड इन सूरत? हाँ, टेल मी, व्हाट हैपेंड? हाँ, बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम पान खाते थे। हाँ हाँ, काहे नहीं, और कुछ कहो। कूड़ा, कूड़ा जो है जहाँ तहाँ पे फैला रहता था, उसकी सफाई जो है मैम वहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी। यस Yes, मैम, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल कूड़े की सफाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, ओके, कूड़े की सफाई ना होने की वजह से जो है शहर में बहुत सारी गंदगी हो गई थी। और 1994 में 1994, लोग बीमार हो okay, in 1994 the city was, okay, the city was affected by a plague. अब प्लेग बीमारी किसकी वजह से होती है? प्लेग बीमारी जो है वो डस्ट बीमारी, हाँ, मैम डस्ट। डर्टी। बेटा, गंदगी के कारण, चूहे की वजह गंदगी से के गंदगी के होती है। कारण। ओके, प्लेग की बीमारी जो होती है वो चूहों की वजह से होती है। ओके, चूहे जब मर जाते हैं और उनमें जब कीड़े फैलने लगते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से ये प्लेग की बीमारी जो है हो जाती है। आप क्लास 6 में पढ़ के आ रहे हैं। ओके, इन 1994 the city was affected by a severe plague and we see that, okay, 6 lakh people, 6 लाख लोग जो हैं वहां से रातों रात जो है वो वहां से उस शहर को छोड़ के हटते हैं, जिसको जो साधन मिलता है वो हट जाते हैं उस साधन का प्रयोग करके। और इस प्लेग की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि, ओके, 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर की, ओके, मूल्य की जो है वहां के जो आर्थिक, ठीक है ना, वो जो एसेट्स हैं, ओके, राज्य के जो एसेट्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान होता है राज्य सरकार को। ओके, और पूरे शहर को जो है वापस नए सिरे से जो है इसकी सफाई होती है, इसकी क्लीनिंग होती है, और उसके बाद जो है इसको नए सिरे से बसाया जाता है। आज के डेट में सूरत जो है हमारे देश का एक अग्रणी शहर है। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द हाई, ब्यूटीफुल। yes, it is one of the well planned and high tech cities of our country. Okay, it's all due to the effort of the government. And ये जो 1994 में जो प्लेग हुआ था, ओके, उसकी वजह उसके कारण जो है लातूर में जो 1993 में जो भूकंप आया था, ठीक है ना, 1993 में जो भूकंप आया था वो उसके पीछे कारण था। ओके, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए थे और वहां पे उनके घरों में अनाज पड़े हुए थे, तो घर के जो चूहे थे वो कांटेक्ट में आए बाहर के जंगली चूहों के साथ, और उसमें जो है बहुत सारे चूहे अनाज के बीच दब के मर गए, एक दूसरे से फाइट करते वक्त मर गए। और इस तरीके से जो है ये बीमारी जो है फैलना शुरू करती है, और स्प्रेड होते होते जो है हम देख रहे हैं शहर, ये जो सूरत है ये तो ऑलरेडी गंदा था, तो यहाँ पे जो प्लेग है वो एक विकराल रूप ले लेती है, और इसके वजह से जो है पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिएवल पीरियड, हम मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके आधुनिक युग का हिस्सा था। नाउ लेट अस सी how Surat was important. As far as Surat is concerned, okay, Surat in Gujarat was the emporium of Western trade. Okay, मैम गुजराती ब्यूटीफुल। Surat in Gujarat, okay, it was an emporium of Western trade. एम्पोरियम शब्द का मीनिंग आपके बुक में दिया गया है। सर आपको मॉनिटर कर रहे हैं, किशोर कुमार बने हो ना? हाँ, कमलेश सर मॉनिटर कर रहे हैं आपको, खूब बढ़िया से गाइए, आज सर का क्लास है ना। ओके, so we see Surat in Gujarat was an emporium of Western trade during the Mughal period.
Okay. Now see, along with Cambay, present day Kambat, okay, and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Okay. अभिनव खरवार, क्या दिक्कत है तुम्हारी? हाँ, see, via the Gulf of Hormuz, Surat has also been called the gate to Mecca. Okay, because many pilgrims have set sail from here. Okay, so we see the other point that is very much important related to Surat is Surat was the gateway to Mecca. Okay, और ये मक्का क्या है? ओके, ये जो मुस्लिम्स हैं उनका पैतृक तीर्थ स्थल है। ओके, और यहाँ से बहुत सारी जहाजें जो है मक्का की तरफ जाती थी, इसलिए इसको गेटवे टू द ओके वेस्ट कहा गया है। सी, द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल। एम्पोरियम का मतलब क्या होता है दिया गया है, प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो सूरत जो है एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड का। इसका मतलब ये हो गया कि ओके, विश्व के अलग अलग जगहों से यहाँ के बाजार में जो है वस्तु लाई जाती थी और उनको बेचा जाता था। ठीक है। The city was cosmopolitan and people of all caste and creeds lived here. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. Okay, so the port of Surat, the port of Surat always had okay 100 ships anchored in it. Anchored in it. Okay. Now see, according to the we have done this. At any given time, there were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders, jadi, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. Okay, so we see Surat was famous for jari work. सूरत वॉज फेमस फॉर जड़ी वर्क। आज के डेट में भी जो है जड़ी का काम जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि अभी भी आपकी माताओं को पता होगा, आपकी माताएं जो हैं खास करके लड़कियों की, ठीक है ना, सुपर नेट के जो साड़ियां पहनती हैं, सुपर नेट जो साड़ी जो मार्केट में अवेलेबल होती है, इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ सूरत। It comes all the way from Surat and okay चुनरी प्रिंट जो साड़ियां होती हैं वो भी सूरत से ही आती हैं, टाई एंड डाई, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सूरत। और वहां पे जो है कपड़े बहुत सस्ते होते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द okay manufacturing hubs of our country. We see this place Gujarat, it has black soil, okay, black alluvial soil which is best suited for the cultivation of cotton. And since cotton is being cultivated there in huge amounts, we see that the cotton textile industry has emerged extensively in that area. And as such, the cotton that is produced there is very cheap, and the traders all over the country, they buy the textiles from Surat and they levy their own charges, and then they sell this product all throughout the country. Okay, so we see Surat was in prominence from the very beginning, from the very medieval period till recent times. Okay, the state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. The Kathiawar Sets or Mahajans, money changers, had huge banking houses at Surat. It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo, in Egypt, Basra, in Iraq, and Antwerp in Belgium. अब देखो ये हुंडी क्या था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको गिल्ड्स के बारे में बताया था, गिल्ड्स जो होता था वो एसोसिएशन होता था मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का, ठीक उसी प्रकार हुंडी जो है ये क्या होता था देखो,
आपके बुक में दिया गया है। व्हाट इज हुंडी? इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। द अमाउंट deposited कैन बी claimed in another place by presenting the record of the deposit. ओके तो मान लो अगर आपको जो है कायरो में जाना है, कायरो जो है इजिप्ट की राजधानी है, और अगर आपको इजिप्ट जाना है, मिस्र जाना है, वहां से व्यापार करना है, वहां से कोई वस्तु खरीद के लानी है, तो उसका पेमेंट आप यहीं पे कर सकते हैं। ओके आपको पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा यहाँ जमा कर दीजिए, और आपके जितने अमाउंट हो रहा है, जो सामान आप वहां पे खरीदने जा रहे हैं, उसकी जो कीमत हो रही है आप यहीं अपने देश में जो है आप जमा कर सकते हैं। और जो आपको सामान लेना है उसके लिए आपको बस वो नोट हुंडी लेके जाना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से। और जैसे ही आप वहाँ के जो व्यापारी हैं कायरो में, उनको वो हुंडी प्रेजेंट करेंगे, वो आपको वो सामान दे देंगे। क्यों? क्योंकि ओके यहाँ उनका पेमेंट हो चुका है। सो दिस ट्रेडर्स दे यूज्ड टू कम। ओके जब भी व्यापार होता है आज के डेट में, हम मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि द WTO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO? Anybody? What is the full form of WTO? World Trade Organization. Yes. Okay. WTO, World Trade Organization. ठीक है ना? ऑलमोस्ट जो है विश्व के सारे लगभग बहुत सारे देश जो हैं इसके सदस्य हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारा देश भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। ओके और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं और दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीद सकते हैं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके and WTO is responsible for regulating the terms of trade। ठीक है ना? जो व्यापार, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके शर्तें क्या होंगी, उसके नियम कानून क्या होंगे, वो ये सब जो है डिसाइड करता है WTO। ओके नाउ सी, however Surat began to decline towards the end of the 16th century. This was because of many factors: the loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal empire, control of the sea routes by the Portuguese, and competition from Bombay, present day Mumbai, where the English East India Company had shifted its headquarters in 1668. Today, Surat is a bustling commercial center. Okay, तो 17वीं सदी के अंत आते आते जो है सूरत का जो है अस्तित्व जो है वो कम होने लगता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे, नाउ सी दिस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज अ मर्केंटाइल कंपनी। ओके आप क्लास 8 के हिस्ट्री के बुक में पढ़ेंगे कि मर्केंटाइल कंपनी होता क्या है। ओके और ये जो अंग्रेज थे हमारे देश में 16वीं सदी में आते हैं। दे एंटर द कंट्री एज ट्रेडर्स। ठीक है ना? ओके व्यापारी। इन 1600 ओके द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये कुछ लोगों द्वारा तैयार की गई कंपनी थी। ठीक है ना? कुछ लोग मिलके जो है इस कंपनी को जो है तैयार करते हैं। ओके एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट, और ये लोग जो है उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, ओके उनके अनुमति से जो है ये लोग हमारे देश में जो है ये लोग प्रवेश करते हैं बाय साइनिंग अ चार्टर। ओके ये लोग एक चार्टर साइन करते हैं, और चार्टर को साइन करके जो है इंग्लैंड की जो महारानी है उनसे अनुमति लेते हैं कि हम ईस्ट, ठीक है ना, पूरब के जो देश हैं वहां पे जो है हम जाके व्यापार करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब हमारे देश में आती है तो देखती है कि हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसे पता चलता है कि हमारा देश जो है बहुत ही संपन्न देश था। ठीक है ना? एक समय में भारतवर्ष को जो है सोने की चिड़िया की उपाधि दी गई थी। ओके ऐसा माना जाता था कि बहुत ऐश्वर्य था यहाँ पे, और इसके पीछे कारण ये था कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश तो शुरू से ही है। कच्चा सामान, रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ओके कॉटन, इन द फॉर्म ऑफ सिल्क, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइसेस, ओके ये सारी चीजें हमारे देश में उपलब्ध थी और इनका बहुत ज्यादा डिमांड था यूरोप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही उसे पता चलता है कि पुर्तगालियों ने जो है सी रूट को डिस्कवर कर दिया है, तो वो हमारे देश में आते हैं थ्रू टेकिंग द सी रूट टू इंडिया, एंड व्हेन दे कम
Okay, they start trading with the Indian people, and they find that the fine qualities of cotton, silk, and spices had heavy demand in Europe. So what they started doing, they started manipulating the rulers. ठीक है ना, हमारे देश के जो शासक थे उनको जो है ये लोग प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, कुछ को जो है प्रेशराइज करके, कुछ को मना के, रिक्वेस्ट करके उनसे जो है रियायतें लेना शुरू कर देते हैं। ओके, सब्सिडीज लेने लगते हैं उनसे, जो है परमिशन लेने लगते हैं, और आस्ते आस्ते जो है ये हमारे पूरे मार्केट को कवर कर लेते हैं। एंड व्हाट वी सी, आप okay, what we see that these East India Company people, they were a mercantile company. Okay, it was a mercantile company. और mercantile company का उद्देश्य क्या होता है? Okay, whose motive is to earn profit. ठीक है ना, उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लाभ कमाए। अब ये लाभ वो कैसे कमा रही है ये मायने नहीं रखता है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो है लाभ कमाना। तो ये लोग जितना तक हो सकता था कम से कम दर देके, कम से कम जो है दाम में जो है यहाँ से कच्चा सामान लेके जाते थे। ओके, और अपने देश में जो है उसको जो है ऊंचे दामों में ये लोग बेचते थे। ओके, नाउ सी, बिकॉज ऑफ दिस आवर इंडस्ट्रीज, हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज थे, खास करके जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनका पतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो ये कॉटन है, फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, चिन, कोसास, ओके, ऑल दीज हैव ग्रेट डिमांड इन यूरोप, and Europeans were ready to pay any amount, and these people, they were earning huge profit. तो ये लोग ओके, जैसे ही ये हमारे देश में जो मार्केट्स को कैप्चर करने लगते हैं, ये हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो किसान हैं, उनको प्रेशराइज करने लगते हैं। अब प्रेशराइज करके कम से कम दामों में यहाँ से कच्चा सामान ये लोग खरीद के अपने देश ले जाने लगते हैं। Now see, fishing in troubled waters, Masulipattnam. Now we will study about Masulipattnam. Okay, where is Masulipattnam? It is in which state? अभी तो बताए थे बेटा, just now I told you. Nobody. Aryan? कर्नाटक। ना बेटा, आंध्र प्रदेश। Yes, ma'am. कहाँ है मसूलीपट्टनम, कहाँ है? Ma'am, आंध्र प्रदेश। ma'am, Andhra Pradesh. वो तो लिख ही नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आर्यन? आर्यन, Yes, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? अमरावती। ma'am, Hyderabad. हैदराबाद। Ma'am, Hyderabad. अमरावती। आर्यन को बोलने दो। आर्यन, अमरावती। Ma'am, Hyderabad. हैदराबाद पहले था, अब अमरावती हो गया है। अमरावती हो गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अरे चुप रहोगे तुम लोग, मैं उससे पूछ रही हूँ, सब बोलने लगते हो। आर्यन Yes, ma'am. बेटा, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके कोई दूसरा राज्य बना है? यस मैम। हाँ यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, बाकी बोल रहे हैं। ये सबकी बहुत गंदी आदत हो गई है। बहुत गंदी आदत हो गई है, जिससे पूछो वो नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेंगे। आर्यन म्यूट करो खुद को। See, the town of Masulipattnam or Machilipatnam, literally, okay, fish port town. Okay, as I told you, it is also known as Machilipatnam, lay on the delta of the Krishna River. Okay, and as far as this Krishna River is concerned, see, in the 17th century, it was a center of intense activity. Both the Dutch and the English East India companies attempted to control Masulipattnam as it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Masulipattnam was built by the Dutch. Okay, तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही सी रूट डिस्कवर करते हैं पुर्तगाली वास्को ड गामा जो है, जैसे ही 1498 में ये जो सी रूट है
Okay, sea route to India is being discovered by Vasco da Gama in the year 1498. We see the rest of the European powers, they started coming to our country, and among these European powers, a special mention can be made to the Dutch, the French, the okay, and the British. Now see, a poor fisher town. This is a description of Masulipatam by William Methwood, a factor of the English East India Company. Now, what do you mean by a factor? Okay, first we will write it was a port town. So we see it was a port town on the Andhra coast. Okay, a factor of the English East India Company. Factor का मतलब क्या होता है? Official merchant of the East India Company. जो officials होते हैं, ठीक है ना? Ma'am of the European. हाँ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन अधिकारियों को ओके जो है मर्चेंट्स के रूप में नियुक्त करती थी, उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था. Now see, this is a chief port of Golconda where the right okay worshipful East India Company have their agent. It is a small town but populous. Okay, विकसित राज्य था, इसके चारों तरफ मजबूत दीवारें नहीं थी. Okay, इल बिल्ट, बहुत ही इल प्लान्ड वे में इसको बसाया गया था. एंड वाज सिचुएटेड विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश. ठीक है ना? ब्रैकिश का मतलब जो है आसपास के जो क्षेत्र थे वो वहां पे जो है गंदे पानी हुआ करते थे. ठीक है ना? नदी नाले थे. It was first a poor fisher town. Afterwards, the convenience of the road, a place where ships can anchor, made it a residence for merchants, and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast. Okay, तो शुरुआत में जो है नदी नाले से भरा हुआ जो है ये एक शहर था. लेकिन जैसे जैसे जो है ये डच जो है अपनी फेवर में इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं. उनका कहना है कि जब वो लोग आने लगते हैं तो इस पोर्ट टाउन का जो है विकास होने लगता है. इसके जो रोड्स जो है वो वेल प्लान्ड होने लगते हैं. Why did the English and the Dutch decide to establish settlements in Masulipatam? Tell me, what could be the answer? ये लोग अपने एस्टैब्लिशमेंट्स जो है क्यों लगाने लगते हैं? Why they are trying to establish themselves in Masulipatam? Why? बोलो. Tell me. No idea. Ma'am, what? Okay, fine. I'll end the meeting today here. Sir is waiting for you. Your class is. Sir, This is the last class, na sir. चुतिया भी बहुत खेलते. ठीक है. Okay. Anjani sir is waiting for you. Okay, thank you children. We'll continue tomorrow. Thank you, ma'am.